अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। सबसे पहले मैंने व्यूअर्स आपसे एक चीज़ की माज़रत करनी है। आई हैव टू अपोलोजाइज फॉर वन थिंग। कल हमारे एक वीडियो में मैंने जब कहा था कि फोरेंसिक एक्सपर्ट का हमने क्लिप चलाना है, जो अर्नब गोस्वामी के शो में आए थे, रिपब्लिक टेलीविज़न इंडिया का है उसके ऊपर, और उस पर हमने उन्हीं के शो का एक और क्लिप गलती से आप समझें एक एडिटिंग ग्लिच हुई, एक एडिटिंग मिस्टेक हुई, उसमें चल गया और वो बीजेपी के एक लीडर थे और वो डिफरेंट क्वेश्चंस रेज कर रहे थे। सो दैट वाज अनइंटेंशनल और वो नहीं चलाना था, जो चलाना था फोरेंसिक, वो मैं आपको दिखा देता हूँ आज। और पहले आप ये फोरेंसिक देख लें जो वो डॉक्टर जो हैं वो कह रहे हैं, और अर्नब कह रहे हैं कि जनाब ही इज़ द टॉप मोस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट इन इंडिया, यानी उनसे बड़ा फोरेंसिक एक्सपर्ट इंडिया में नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वही क्या कह रही हैं। वॉच दिस। Arnab, first, the very important revelations I want to make is, according to the medical legal document will be released by the Leelavati Hospital, it confirms that knife was never used in the assault at all. This is the biggest revelations I want to make. The reason how can you say that? No, one minute. Injuries described on the bodies are lacerations. Lacerations are never caused by the sharp object like that of the knife. Lacerations are always caused by the blunt force. You can see the medical legal document. The lacerations is on the left wrist, left elbow, 1 minute, and an abrasion on the left elbow, right shoulder, and the right neck. These lacerations, because all the 5 injuries described, even the opinion given by the doctor that he was admitted with the lacerations and bleeding, and then goes with the descriptions of those lacerations. And lacerations can never be caused by the knife. On the contrary, they see the pieces of knives has been described and narration about the knife injuries has been described, but the document speaks about only lacerations because it contains the depth. They should have a stab injuries always have the length, breadth and depth, but it's only the length has been described, and none of the places the description nature of injury as stab has never been mentioned. So in any of those 5 injuries you can laceration, absolutely, incisions are different. Lacerations are different. Lacerations, abrasions, and can a laceration are only by blunt force. Not into the spine. Absolutely not. That becomes a stab. But here, only laceration. See, all the 5 injuries described in the document in front of you, they are only lacerations. In this case, apart from this, the type of recovery and the gait in which he walked out after 5 days doesn't match with the nature and the severity of the injury as described by the clinicians. If the cerebrospinal fluid to ooze out, that means to say the vertebra and the underlying dura that has to have been injured, that means there to be a penetrating wound and there should have been an injury to the possible nerves which are consistent or corresponding to that particular spine. In that is the case, there would have been a nerve innervation of that particular muscular area should have been paralyzed. आपने देखा कितनी बड़ी रेवलेशन आई, और ये तो मैं आपको कल बताना चाह रहा था, और उसके बाद से अभी तक बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। लेकिन आपको पहले मैं इससे मज़ीद आपको मैं बता दूं कि बाकी टेलीविज़न चैनल्स भी और अब मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वहाँ पे ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये नाइफ वुंड नहीं है। वो जो छुरी मारी थी सैफ अली खान को, ये छुरी नहीं है, ये इट्स नॉट अ शार्प नाइफ, इट इज़ सम अदर ऑब्जेक्ट। वो सुने वो टीवी चैनल्स क्या कह रहे हैं। वॉच दिस। With the sharp knife that was used in the stabbing case, basically stating that the laceration or the wound that is produced by the tearing of the soft body tissue is not the same weapon that was used in the Saif stabbing case. आपने देखा कि अब हर एक इसको डाउट करना शुरू हो गया है। बेसिकली अगर आप उससे पूछें तो मैं आपको बताता हूँ 2 बातें हुई हैं यहाँ पे।
सबसे पहली बात यह है कि देयर हैज बीन अ मर्डर, एंड आई मीन अ मर्डर, एंड आई बिलीव इट इज द मर्डर ऑफ द ट्रुथ। सच्चाई जो है वो मारी गई है, सच्चाई जो है वो कत्ल हुई है। सैफ अली खान ने झूठ बोले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। करीना कपूर झूठ बोल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, उनके नौकर झूठ बोल रहे हैं, लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बढ़कर मुंबई पुलिस झूठ बोल रही है। और जो पूरी इक्वेशन में सच बोल रहे हैं अभी तक, वो एक्यूज्ड हैं जिनको बेगुनाह लोगों को पकड़कर पुलिस ने बारी बारी अंदर किया। और अब तीसरा जो सैफ अल इस्लाम है, मुंबई पुलिस ने जिसको पकड़ा हुआ है, और उसके ऊपर बड़ी आर्गुमेंट्स हो गई हैं, तो बात भी करने की जरूरत नहीं है कि वो वीडियो कैमरा में जो शक्लें हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। उसकी शक्ल डिफरेंट है, उसकी प्रोफाइल डिफरेंट है, उसकी उम्र में फ़र्क है, एज का डिफरेंस है। तो और मुंबई पुलिस ने तो एक दूसरे को सर्टिफिकेट्स भी इशू कर दिए थे, तारीफी असनाद भी दे दी, और उन्होंने थापी भी ले लिया, पैट ऑन द बैक एज वेल, सब कुछ। तो जब ये सब कुछ हो गया है तो दो बातें जहन में आती हैं। हु इज द बेनिफिशियरी, ये किया किसने है, और दूसरी बात यह है कि व्हाट ट्रांसपायर्ड ऑन दैट नाइट। तो पहली बात तो यह है कि बेनिफिशियरी मुझे इसमें लगता है सैफ और करीना है, और वो किस तरह से हैं, क्योंकि या तो वो दोनों झूठ बोल रहे हैं या कोई कवर अप कर रहे हैं, या उनकी आपस की लड़ाई हुई है, या उन्होंने किसी एक ने दूसरे को किसी तीसरे के साथ पकड़ लिया या एक्यूज किया और उसके ऊपर ये लड़ाई हुई, ड्रग्स का असर हो गया। लेकिन अब मुझे मुंबई में कुछ और लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि दोस्त तो होते हैं हमारे हर जगह पे, और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यानी देयर इज नो बेसिस फॉर दिस थ्योरी। लेकिन मैं आप तक लेके आ रहा हूं क्योंकि मुझे कम से कम ये 3 लोग बता चुके हैं, और जब एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोग कह रहे हो और मुंबई से हो सारे के सारे, तो वन हैज टू टेक इट वेरी सीरियसली। वो कहते हैं कि जनाब ये बंदा आया था, बंदा जो भी था वो इनका जाना हुआ था, जाना पहचाना था, और वो इनका कोक डीलर था, और इसने उसके पैसे देने थे इन्होंने, और उस पे इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ व्हाटएवर, और उसके बाद खैर वो चला गया वहाँ से। लेकिन अब सरप्राइजिंग सी बात है कि उस बंदे ने क्या उठाया वहाँ से। मेड ने कहा जी उसने 1 करोड़ रुपया तावान मांगा, या 1 करोड़ रुपया मांगा है उसने, और करीना कपूर कहती है उसकी सारी ज्वेलरी वहाँ पे खुली पड़ी है, और वो आदमी न ज्वेलरी को उसने हाथ लगाया, न किसी पेंटिंग को हाथ लगाया, न किसी और चीज़ को हाथ लगाया। लेकर क्या गया? मैचिंग जूते, अपने कपड़ों से मैचिंग जूते। उसकी फुटेज मिल गई, वो देखें जरा। देखा आपने, जूते चोरी करके ले गया। अब इंटरेस्टिंगली ये एक कैमरा जो है जो उसको जूते चोरी करते दिखा रहा है, अपार्टमेंट में ये कैमरा चल रहा है। उसके अलावा उस अपार्टमेंट के जितने कैमरास हैं उनकी कोई फुटेज नहीं है। उसके अलावा उस बिल्डिंग में, यानी 9th फ्लोर, 10th फ्लोर, 11th फ्लोर, 12th फ्लोर, ये 4 फ्लोर्स के, 5 फ्लोर्स के जितने भी कैमरास हैं, दे आर नॉट वर्किंग। फ्लोर नंबर 6 और 7 या 5 और 6 जो है उसके 2 वीडियो कैमरास चल रहे हैं, और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए और उतरते हुए हमें दिखाई दे दिया। मिस्ट्री ये है कि 2 ऐसे लोग हैं वहां पे उस बिल्डिंग के अंदर जिनकी जी सिक्योरिटी है, टॉप रेटेड सिक्योरिटी है इंडिया में, और उनकी सिक्योरिटी वालों को नहीं पता चलता, किसी और को नहीं पता चलता। 1.5 घंटे के गैप के बाद सैफ अली खान जो है अस्पताल पहुंचते हैं, एक ऑटो के अंदर पहुंचते हैं। हमने जो देखा, जो पूरी दुनिया ने देखा, जो ऑटो वाले ने बताया कि उनका छोटा बेटा तैमूर जो है वो उनको अकम्पनी कर रहा है और वो उनको लेके जा रहा है, वहां पे अफसर जैदी का नाम आ गया। उसी रात को पता चलता है कि अफसर जैदी तो दुबई में है। अब अफसर जैदी ने दुबई में किसी को ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं तो था ही नहीं, मैं नहीं लेके गया था उसको वहां हॉस्पिटल में, तो मेरा तो बस नाम आ गया, मैं दोस्त हूं, तो अल्लाह खैर सल्ला। सो वो भी चीज झूठ हो गई। और सबसे बढ़कर ये है कि जो डॉक्टर्स ने क्लेम किए थे कि उसके वो कमर के अंदर छुरी है और चाकू है, वो टूटा हुआ है, और वो स्पाइनल कॉर्ड के जो फ्लूइड्स हैं वो ऊज आउट कर रहे हैं, वो बह रहे हैं, और यानी आप समझें उसके मगज में 2.5 इंच कितना है तकरीबन, इस लाइटर को आप इतना समझ लें, ये जो है
ये 2.5 इंच स्टील आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हो, आप हिल नहीं सकते, और आप कई महीनों तक नहीं हिल सकते। फिर आप जब हिलेंगे भी तो वो भी आपकी चीखें निकलेंगी। ये तो ऐसे निकला है अस्पताल से जैसे छलावा। सो आई एम कन्विंस्ड कि या तो हो सकता है इसमें कोई इंश्योरेंस का चक्कर हो। अच्छा, डॉक्टर्स पे ये भी इल्ज़ाम लग गया, उन्होंने पहले ही दिन इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर दिया 35 लाख रुपए का। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है वो करोड़ से ज़्यादा बनता है, या करोड़ जितना बनता होगा, और 48 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम एक्सेप्ट भी कर लिया और पैसे भी दे दिए अस्पताल को। तो बड़ी जल्दी जल्दी ये इंश्योरेंस क्लेम्स हो रही हैं। अभी पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, उसके बाद वो पे भी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने भी उसके पर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे। कमाल की सर्विस है, आफरीन ऐसी सर्विस पे। माना सैफ और करीना VIPs हैं या VVIPs हैं, but I don't think anybody should be above the law. I don't think anybody should be above being honest. और ये दोनों यहाँ पे डिसऑनेस्ट हैं। सैफ की और करीना की अपनी स्टेटमेंट जो हैं, अब उनमें ऑफिशियली फर्क आ गया। करीना कहती है मैं थी नहीं वहाँ पे, मैं पार्टी पे थी। सैफ कहता है करीना वहीं पे थी, मेरे साथ थी और हम दोनों एक साथ गए अंदर। और सवाल यह है कि वो जो बाकी लोग थे, नौकर थे, 4 नौकर थे, उन्होंने क्यों नहीं उस इंट्रूडर को पकड़ने की कोशिश की? उन्होंने किसी ने हाथ भी नहीं डाला उसको, वो क्या वजह है? और ये जो सैफ के जिस्म पे निशानात हैं, ये किस धात से या किस वेपन से कॉज हुए? उनके डॉक्टर्स कहते हैं वो तो छुरी से नहीं हुए, जिस छुरी का एलेज किया जा रहा है। पर उसके 3 हिस्से कैसे हो गए? और पुलिस ने वो तीनों हिस्से रिकवर भी कर लिए। सपोजिटली एक हिस्सा उसकी कमर से निकला, दूसरा हिस्सा जो है वो एक्यूज के बैग से निकला, उस एक्यूज के बैग से जो एक्यूज नहीं है, ये याद रखिएगा। और तीसरा जो है वो उनको कहीं वहाँ झाड़ियों में मिला या ढूंढते हुए मिला। कमाल की पुलिस है। आई थिंक इट कैन गो डाउन एज द मोस्ट स्टूपिड पुलिस सर्विस इन द वर्ल्ड। हालांकि मुंबई के जो सुपरस्टार्स हैं वो तो हर साल ये मुंबई पुलिस को ट्रिब्यूट्स देते रहते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रिब्यूट देते हैं कि आदमी, कभी एक आधा मैंने शो देखा है तो आदमी कहता है भाई क्या बात है इस पुलिस की। और इस पुलिस को हमने उसकी कारकर्दगी देख ली इन सारे केसेस के अंदर, तो धेले का काम नहीं कर सकते, एंड इनकॉम्पिटेंट टू द बोन, एंड ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू कवर अप. Somebody is trying to cover up. The hospital staff is trying to cover up. The police are trying to cover up. Saif and Kareena are covering up. Their servants are covering up. And above all, people who know them, their own fraternity of Bollywood, they are covering up by not speaking. In fact, वो तो मिलने भी नहीं जा रहे, वो तो देखने भी नहीं जा रहे, उन्होंने तो पूछा भी नहीं क्या हाल है। लेकिन अब ये नया ट्विस्ट है कि इसको ये छुरी के वुंड्स नहीं है और इंश्योरेंस का भी क्लेम हो गया। अब आपको क्या लगता है, जो मैंने आपको पहले दिन कहा कि ये झूठ है, एंड देयर इज मच मोर देन मीट्स द आई, अब आपको मेरी बात का यकीन आया? बट बहरहाल वंस अगेन एट द एंड मैं आपको बताऊं, जो कल हमारे से गलत क्लिप चला उसके लिए आई अपोलोजाइज। कई व्यूअर्स ने पॉइंट आउट किया एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपने पॉइंट आउट किया, वरना आप ना करते तो हमें अपनी गलती का एहसास ना होता। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इस चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।